Good morning, all. All of you can hear me? Yes, sir. Okay, fine. Today we'll be dealing with prepositions. Just give me a I don't know, last lecture we had started this in the afternoon batch. Preposition start किया था हम लोग ने. Just give me an idea. Prepositions हम लोग ने start किए थे last lecture में. Had I given you a short introduction about this? Yes, sir. Okay, just let me know ना किधर तक किया था. क्या खाली introduction we had done the types हो गए थे. We had done the types of prepositions. Simple, compound, and all that things were done. No, sir. Okay. No, sir. ठीक है तो what I'll do I thought that I'd given a short introduction लेकिन मुझे लगता नहीं I'd introduce the preposition. I'll just give that introduction again. What does preposition mean, by the way? Preposition क्या होता है? One of you can try. What is the preposition basically? क्या बताता है preposition sentence में? Position. Yeah, position. Yeah, position. Like इसको हम लोग कैसे याद रखते हैं? Pre और position. ठीक है तो ऐसे split up याद रखो pre और position. It is the word which gives you the position of a noun in a sentence. Like give me some examples अभी जो words हमको position बताते हैं किसी भी चीज का in a sentence. आप लोग अभी सब like we are sitting on a table, in, on, फिर behind, ये सब क्या बताते हैं? Position बताते हैं ना किसी चीज का. Correct? They tell you about the position. So these are called as preposition, which basically give you idea about the position of a object. Okay, give me some more examples so that I come to know that the concept is clear. और मुझे examples दो something similar to this. In, on, behind. Beneath. Under, above, below. Yeah, under, above, Among. below. Towards, beneath, Okay. with, among, between. Okay. Good. So I think the concept is clear ना. तो ये prepositions are words which will tell you the position of an object. Okay, fine. तो ये concept clear है ना? What is the preposition? Yes, अच्छा, sir. next coming to the types. Types मैंने बताए थे last lecture में. I don't recollect. Just tell me. No, sir. No, okay, fine. सिर्फ इंट्रोड्यूस कराया था बस preposition का. Okay, ठीक है. I'll just tell you the Introduction. types. Yeah, these are not so important from the point of view of exam, but just for the basics. There are basically 5 types. I'll not go into details. I'll not give any definitions. Just take a few examples. Okay. I'll just dictate the 5 types of prepositions और just इसका example लिख लो. पहला लिखो simple preposition. First one लिखो simple preposition. Examples: in, at, over, under, etc. The second one is your compound preposition. Second is your compound preposition. Sir, in, at. So, in, at, over, under, etc. Done. Second one, compound preposition. Within, Yes, sir. without, within, without, outside, inside, etc. तो क्या बेसिकली क्या डिफरेंस है सिंपल का prepositions और compound prepositions? अभी हम लोग ने लिखे. What is the difference? You can see it basically. क्या difference है? Simple preposition normally will consist of one word, and compound preposition will be a combination of more than one word. Like within में with और in आता है ना, without में with और out होता है. तो compound preposition basically will be a combination of more than one word. Okay. The third type is your double preposition.
double preposition. Examples: outside of, inside of, etc. Okay. Next is your fourth type is your participle preposition. Participle, P-A-R-T-I-C-I-P-L-E, participle preposition. But tell me, what is a participle? Participle क्या होता है? Any idea? सुना है participle? अच्छा, tell me this. ये जो word लिखा है, ये कौन से form में है? Which tense? Tell me the tense of this. Play. Which tense is it? Simple present tense है, past tense है या future tense है? Simple present tense. Yeah, it's in simple present. Correct. तो अगर इसको मुझे पास्ट में करना है तो क्या हो जाएगा प्ले का? Played. Played. तो प्ले इज द प्रेजेंट टेंस, प्लेड इज द पास्ट टेंस. तो क्या ऐड किया मैंने? ईडी ऐड किया ना. तो ईडी इज कॉल्ड एज अ पार्टिसिपल, इट इज कॉल्ड एज अ पास्ट पार्टिसिपल. ये आपका हो गया ईडी इज द पास्ट पार्टिसिपल. ठीक है. इन द सेम वे आईएनजी, जब भी कोई वर्ब को हम लोग आईएनजी जोड़ते हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ईडी इज द पास्ट पार्टिसिपल जो मेरे वर्ब को पास्ट फॉर्म में लेके जाएगा, जैसे प्ले का प्लेड होगा. और जो which if it is in the same present tense, it becomes the present participle like ing. Okay, so participle prepositions, take a few examples: considering, pending, concerning, etc. Considering, pending, concerning, etc. Done? हो गया? The last type of preposition is called as a phrasal preposition. Phrasal, P-H-R-A-S-A-L. P-H-R-A-S-A-L. Phrasal preposition. Examples लिखो. Some phrases like by means of, because of, on account of, etc. By means of, because of, on account of, etc. So these are basically the 5 types of prepositions. I mean, this is not so important from the point of view of exams. What is important is the use of preposition. Where to use the preposition? Prepositions basically आपको of course they will be handy when you do spotting errors, और जब आप closely solve करोगे तभी ये बहुत काम का आता है. Okay, so just we'll try to see certain difference between certain basic prepositions like now in or on. With regards to time, जब हम लोग time की बात करते हैं तो कभी in कभी यूज होता है, on कभी यूज होता है. Just give me an example. When do we use in? When do we use on? Okay, rich in time. Or when you are talking, I'll just give an example, then you can start. Okay, जब मैं बोलता हूँ 2006, we met in 2006 बोलते हैं या we met on 2006? What do we say? In 2000. In, yeah. तो specifically for any year, अगर year की बात है तो हम लोग बोलते हैं in. So this is for a year. So when you are talking about a year, we'll use in. और कभी होता है ऐसे बोलो. और कभी होता है in का use. Days. Date. Day के लिए in बोलते हैं. Sir, on. months. Yeah, months. We On. had met in Feb. हम लोग बोलते हैं ना, we had met in the month of Feb. So in month of Feb, not on. Okay. और just come और उसको split करो, थोड़ा और नीचे आ जाओ. Year से month पे आगे, month से और छोटा करो जरा. क्या आएगा? Morning, Yeah, afternoon. yeah, that is the parts of a day. Okay. Parts of a day. Now, which are the parts of a day? Morning, afternoon, Morning, afternoon, night. evening, Evening. Night. Morning, afternoon, evening,
और नाइट नाइट लिखूं या मत लिखूं, बोलो सोचो जरा, नाइट नहीं। लिखूं? नहीं नाइट आएगा। नहीं, at night नाइट at night time. हाँ गुड, नाइट के साथ इन नहीं आता है, नाइट के साथ हमेशा हम लोग एट नाइट यूज करते हैं, वी नेवर से इन नाइट, तो नाइट के साथ नाइट इज एक्सेप्शन, नाइट में एट नाइट होगा। ओके ओके ओके, नाउ कमिंग टू ऑन। अभी year in is used for period of time like year, month, parts of day. On कभी होता है? Any idea? days. या days. We met on Thursday बोलते हैं ना, तो days के लिए definitely on होगा। We met on Thursday, we met on Friday, और Date. date, Dates. yeah, good. We had met on 25th of this month, we had met on 20th of this month, तो days और date के लिए। अच्छा, इनमें और एक रह गया, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट वन मोर। इन कभी होता है और यूज सीजन्स के साथ क्या यूज होता है? इन या ऑन? सीजन्स In. इन समर ना, वी मेट इन समर वगैरह, तो सीजन्स एड सीजन्स आल्सो हियर। So is this clear now? This difference is clear between in and on. This is with regards to time. Time में हम लोग in कभी use करते हैं, on कभी use करते हैं। I hope this is clear. Yes? Yes. Yes. Okay. So just make a note of this. Then we move to the next one, next concept. You have finished writing? Yes. Okay, Yes, fine. sir. Okay, I just put up a few sentences. I'll put the option also. Just try to fill the blanks with the suitable option. In या into. In कभी होगा, into कभी होगा. I'll just wait for a couple of minutes. I'll wait for 2 minutes. Just try to fill them with the appropriate option. Done, sir. Okay. Okay, tell me first में क्या लिखा आप लोगों ने? The teacher went dash the room. Any other room या into the room? Into the room. Okay, into. Second one, In. I'm In. in. I'm sitting in the room. Okay, third one, Into. Into. Into the pool. Into. fourth one. In. 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 अच्छा, the mobile is in my pocket. On heating ice changes In- in water or into. Into the. Into water. into water. All of you are going with this या any contradictions? किसी का आंसर अलग है? Get your doubts clarified. कुछ अलग लिखा है किसने या all of you are going with the same pattern? All of you are the same pattern. Okay. Now tell me any specific reason. कुछ specific reason है into इधर डाला in डाला या you're just going with the flow of the sentence? या कुछ specific reason है, grammatical reason है कुछ? Normally क्या होता है? We go with the flow of the sentence कि ये word डालेंगे तो it sounds good to the ears. कान को सुनने को अच्छा लग रहा है. That's why we go with the flow of the sentence.
So I just wanted to know if you are going with the flow of the sentence या फिर आपने कुछ rules use किए grammar के. Just let me know that. Into create motion. Into creates, yes, sorry. Motion. Okay, into is for motion. Okay, good. Into is normally used. Into हम लोग तभी use करते हैं when you are talking about motion. और Change in change, state. yeah, change in state. Good. Or in, by no motion, it's stable. No motion is there. Okay. So first statement में motion है या नहीं है? The teacher went into the room. Motion है या नहीं है? हाँ है. Yes, हाँ, sir. because the teacher is going to walk ना, she is going to come from somewhere into the room. तो इधर motion definitely है. तो of course into आएगा. Second में I am sitting dash the room. Motion involved है? No, sir. No, No sir. motion because I am already present. मैं already वो room में हूँ. मैं already वो room में बैठा हूँ, खड़ा हूँ, जो भी हूँ, मैं already वो room के अंदर हूँ. That's why of course no motion is involved. So this will be definitely in. Now he jumped dash the pool. Motion is there? Yes. 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 Yeah. Yeah, the motion is there. He is going to jump from from land to water और जो भी है वो तो motion है तो आएगा. The mobile इधर भी motion नहीं है because the mobile is already there in my pocket. मैं उसको कहाँ से उठा के कहीं नहीं डाला हूँ. It's already there in my pocket. So of course इधर भी in आएगा. And again this is change of state. Ice changes into water यानी solid to liquid. Ice is in solid form. Water is in liquid form. तो ये ice to water, solid to liquid definitely. तो इधर into आएगा. Okay. So I hope this concept is clear. So the basic मोशन रहेगा तो हम लोग इनटू डालेंगे, मोशन नहीं रहेगा तो इन डालेंगे. ओके Yes. Yes, sir. ओके फाइन. अच्छा, नेक्स्ट डिफरेंस होता है ऑन और ओवर का. एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस व्हेन हम लोग ऑन कभी यूज करते हैं, ओवर कभी यूज करते हैं? एनी आइडिया? जस्ट ट्राई टू फ्रेम इट इन अ सेंटेंस. कोई भी सेंटेंस सिंपल से बना दो, आपको आंसर मिल जाएगा. जब भी आपको कोई डाउट होता है तो जस्ट ट्राई टू फ्रेम अ सेंटेंस. ऑन का एक सेंटेंस बना दो, ओवर का एक सेंटेंस बना दो और देखो इफ यू आर एबल टू गेट द डिफरेंस. With regards to place के लिए कोई भी एक सिंपल सेंटेंस बना दो मन में, यू विल गेट द आंसर प्रोबेबली. नहीं, ऑन के साथ कोई भी सेंटेंस बना दो. With regards to place, It's on simple the, yeah. Yes, बोलिए. Sorry, I could not hear you. book is on the table. Okay. Okay, yes. The book is on the table बोलते हैं क्या over the table बोलते हैं हम लोग? On the table. On the table. Good. Over का मैं लिख देता हूँ. The mist hung over the forest. Okay. The mist hung over the mist मालूम है ना? Mist fog जो होता है वो क्या बोलते हैं? कोहरा. कोहरा पता है ना? All of you? Yes. धुका. Yes. तो the mist hung over the forest बोलते हैं भाई. over और on तो क्या डिफरेंस अभी ये यूज में बोलो. on की यूज किया इधर और इधर over की यूज किया. the mist hung on the forest बोल सकता था मैं. why I use over here? Any specific reason? after reading the sentence तो डिफरेंस समझ में है आप लोगों को? book is on the table, the mist hung over the forest. Any specific difference on और over के यूज में? on is used when you are talking about a physical contact. जैसे when I say the book is on the table, वो book और table का contact हो रहा है या नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? Yes. Yes. So when you're talking about a physical contact, you'll use on. And when I say the mist hung over the forest, यानी जो कोहरा है वो forest के ऊपर है, so it's always suspended. वो कभी ground को touch नहीं होता है. Normally it's suspended in the air. वो touch physical contact नहीं होता है. So when there is no physical contact, you'll use over.
ये समझ में आया डिफरेंस? I hope this difference is clear. Yes, sir. Okay. Okay, next concept. He will return in a week. He will return within a week. अभी इसमें in और within का difference, just try to tell me the difference between in and within. He will return in a week. He will return within a week. Meaning कैसे change हो रहा है? Just let me know. Any idea? In a week का मतलब क्या होता है? हाँ. करेक्ट. एट द एंड ऑफ होता है और ये विद इन का मतलब होता है बिफोर द एंड ऑफ. ओके. So when I use in the week, man, that means it will come at the end of the week, and within a week यानी before the weekend. So this is the difference. In का मतलब at the end of होता है और within का मतलब होता है before the end of. Done? Yes, sir. Okay. Okay, chalo, I have put up a few sentences. Again, try to fill them with the appropriate preposition in and at. In कहाँ आएगा? At कहाँ आएगा? Finished writing the answers?
टेल मी फर्स्ट में क्या आएगा, इन आएगा या एट आएगा? ही लिव्स डैश मरोल इन मुंबई, क्या आ सकता है? इन At. एट, At. ओके एट. सेकंड वन, ही लिव्स डैश मुंबई डैश इन महाराष्ट्र, सॉरी, In. In Mumbai. In in Mumbai, Mumbai. थर्ड वन, ही लिव्स डैश न्यूयॉर्क डैsh the US, In. In New York. In US. In US. in US, okay. The last one, he stays dash Rampur dash UP, At Rampur Rampur in in UP. In UP. in UP, okay. Okay. अच्छा, first tell me this, ये जो मैंने the US लिखा है, is it correct or wrong? US होना चाहिए कि the US होना चाहिए? The US. The US. Yes. Why? So any specific reason? Like we say ना कि I stay, हम लोग क्या बोलते हैं? I stay in India बोलते हैं, I stay in the India बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग? I stay in India. In I stay India. in India, good. तो फिर I stay in the US or I stay in US? The US. Why? Any specific reason? United State and short form use कर रहे हैं इसकी वजह से. Okay, short form यानी it's a group of island. Articles हुआ है आप लोगों का? I don't know if you're done with articles. Articles हो गए आपका? No, sir. No. Okay. Yes, can you repeat the reason again so that others can hear? United State हाँ. and it's use short form. Yeah, it's an abbreviation, correct? Yes. या तो कोई भी कंट्री का एब्रिविएशन हम लोग यूज करते हैं, लाइक यूनाइटेड स्टेट्स इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स. यूनाइटेड स्टेट्स का मतलब होता है इट्स यूनियन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स. हाउ मेनी? आई डोंट नो, 26 शायद से. तो 26 स्टेट्स का ये यूनियन है. तो जब भी यूनाइटेड स्टेट्स होता है या यूएई होगा, यूएई आल्सो इज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. तो जब ये यू वाले वर्ड्स आते हैं, व्हेन दे इंडिकेट अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और ग्रुप ऑफ स्टेट्स, यू विल बी यूजिंग द. ओके, Yes. दैट्स व्हाई इट्स द यूएस. एंड इंडिया के साथ हम लोग खाली इंडिया यूज करते हैं. तो ये क्लियर है ना? ये द क्यों यूज किया मैंने इधर? Yes, sir. Okay. Now in or at वापस बोलो. Any specific rule you have followed or again gone by the sixth sense? कुछ specific rule आप लोगों ने use किया या फिर ऐसे ही with the flow of the sentence with the sixth sense? इन In इधर डाला है. हाँ for बोलो. metro city. हाँ yes and At is used for small town. yes exactly. So just take this down. Just make a small note. At उसके नीचे एक छोटा सा note बनाओ. At is generally used with names of small towns. At is generally used with names of small towns, comma villages and localities. At is generally used with names of small towns, villages and localities. In is used with names of big cities. In is used with names of big cities. Bracket में metros डालो, metros. Countries, sorry, states, countries and continent. तो ये डिफरेंस क्लियर है ना? whenever you are talking about small, don't compare. Normally क्या होता है, we compare कि ठीक है मुंबई महाराष्ट्र में या मुंबई महाराष्ट्र से छोटा है तो नॉर्मली इधर एट डालते हैं, इधर इन डालते हैं. द सेम वे न्यूयॉर्क लाइज इन यूएस. तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूयॉर्क यूएस से छोटा है तो वी यूज दैट कॉन्सेप्ट. ये उससे छोटा है तो इधर एट इन. वैसा कुछ कॉन्सेप्ट नहीं. यू डोंट हैव टू कोरिलेट दिस. ये दोनों को कोरिलेट बिल्कुल नहीं करना है. द रूल इज वेरी इजी. बड़ा बिग सिटीज, मेट्रोज, नेम्स ऑफ स्टेट्स, नेम्स ऑफ कंट्रीज, नेम्स ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इन आएगा. If you're talking about smaller villages, छोटे villages की बात हो रही है, छोटे towns की बात हो रही है तो at आएगा. Okay? So I hope this is clear now. Yeah? Yes. Hello, sir. Sorry, somebody has got a query? सर वो द का फिर से एक बार बोलिए ना. द यूएस. Okay. Actually this is इसका articles का topic है, लेकिन मैं बता देता हूँ वापस.
I just written two sentences. पहला बोल रहा है he stays in America. Second says he stays in USA. So now America USA अलग अलग है सेम है पहले बताओ. Same. Same. They are one and Same they are है, one and sir. the same country, correct? Na? They are one and the same country. But here, what is the Yeah. difference? Here I am talking about America, which is single country, and when I say USA, USA का full form क्या होता है? United United of America. States Of America. of America. So now this becomes a single entity, but it is forming a United States, and it is a group of states. कुछ states है जो एक साथ आके अमेरिका बना रहे. So that's why either this is a single entity, but here also it is a single entity. लेकिन difference है जब मैं इधर अमेरिका की बात कर रहा हूँ, it is a group of states. कुछ states साथ में मिलके वो country बना रहे. That's why when I am talking about a group of states coming together, तो ये united word आ गया. That's why इधर मुझे article use करना पड़ेगा. The और इधर मैं I stay in America. Here I'll not require article because this is not of course it's America, but उसमें वो word united word नहीं आ रहा है ना. Okay. तो जब भी कोई कंट्री के नाम में जैसे यूएई, इसके साथ आप आर्टिकल यूज करोगे या नहीं करोगे? करेंगे। द यूएई आएगा कि खाली यूएई आएगा? The द आएगा बिकॉज अगेन इट कंसिस्ट ऑफ इन द सेम वे रिपब्लिक ऑफ कोरिया, तो इसके साथ भी मुझे आर्टिकल यूज करना पड़ेगा. If I just say Korea, I will not use article the. I will say just say he stays in Korea. But अगर मैं रिपब्लिक वर्ड यूज करता हूँ तो अगेन मुझे यूज करना पड़ेगा he stays in the Republic of Korea. तो जस्ट याद रखो फ्यू वर्ड्स, अगर वो कंट्री का नाम दूसरे तरीके से लेते हैं, जैसे उसमें यूनाइटेड वर्ड यूज होता है या फिर रिपब्लिक होता है, तो यू विल बी यूजिंग द आर्टिकल. और अगर वो वर्ड नहीं आते तो आर्टिकल नहीं यूज करना है, द यूज नहीं करना. ओके, अभी तो फिलहाल इतना ही याद रखो. When we'll deal with this topic, आर्टिकल जब होगा तो I will go in details. Fine? Yes, sir. Okay. 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 I have written two sentences. Which one do you think is grammatically right? या both are right, both are wrong, या दोनों में से एक सही है? कौन सा वाला लग रहा है आपको? Which one is right? First one is right. First one is right. first one Okay. is right. First one. Second one wrong है? Is the second sentence wrong? अच्छा, सेकंड सेंटेंस भी ग्रामेटिकली करेक्ट है. आई विल टेल यू डिफरेंस. व्हेन आई से ही इज सिटिंग ऑन द टेबल, तो उसका मतलब क्या हो गया? एक्चुअली देयर इज अ टेबल, एक टेबल है, उसके ऊपर वो जाके बैठे हैं. ठीक है, वो तो पता है ना हम लोग को. लाइक यू माइट बी सिटिंग ऑन द चेयर राइट नाउ, आई डोंट नो वेयर यू आर सिटिंग. तो यू माइट बी सिटिंग ऑन अ चेयर और यू माइट बी सिटिंग ऑन अ टेबल. तो ये हम लोग बोलते हैं जब एक्चुअली उधर टेबल है और आप जाके बैठे हो. ठीक है. नाउ यू मस्ट हैव गॉन टू होटल्स ना, रेस्टोरेंट्स में जाते हैं ना डिनर करने के, लंच करने के लिए. गो, करेक्ट, जाते हैं ना हम लोग. हाँ सर. Yes, sir. या तो तभी आपका जो डिनर का या जो लंच का प्लेट आता है, दैट इज केप्ट ऑन द टेबल, बट यू डोंट सिट ऑन द टेबल. व्हाट डू यू डू? यू पुल अप अ चेयर. आप एक चेयर खींच लेते हो ना और बैठते हो टेबल के पास, करेक्ट? हाँ Yes. सर. तो दैट इज कॉल्ड सिटिंग एट द टेबल. जब वो कोई चीज, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो बुक टेबल पे है, यू पुल अप अ चेयर नियर द टेबल और आप पढ़ाई स्टार्ट करते हो, तो दैट टाइम वी से दैट इज सिटिंग एट द टेबल. और एक्चुअली जब आप वो टेबल के ऊपर हो तो अभी इट विल बी ऑन द टेबल. And when you are pulling a chair या pulling something to sit near the table, it will be called sitting at the table. तो हाँ, जवळ. तो समझ में आया? both are grammatically correct. Got this? Yes sir. Yeah. Yes.
ये हो गया ना, I'll remove this ना. Okay, the next concept. Again, fill this with the appropriate options, beside and besides. Done, sir. Okay. Others, boys, हो गया? Yes, sir. Okay, fine. चलो बोलो, first में क्या लिखा आप लोगों ने? Which one, with S or without S वाला? Without S. Without S. The second one? With With S S. or without? With S. With S. With S. Yes, sir. The third one, you were standing dash is sister. Without S. Without S. The last one? With S. With S. Okay. Now tell me what is the basic difference between both the besides, एक with S or without S वाला difference? With S means addition, in addition. Okay. And the other beside one? means बाजू में. Okay. Boys, any answers for this? What is the difference? With S or without S वाला? With S कभी यूज होता है, beside और without S वाला कभी होता है? Any idea? Okay. Normally beside जो without S होता है, that is used to indicate position. और ये जो with S होता है, that is in addition to वाला. Okay. In addition to, जैसा ये sentence है, besides maths he failed in science, यानी वो maths में ही नहीं बल्कि science में भी fail हो, तो in addition to maths he also failed in science. That's why I use with S. In the same way, is that second sentence, besides all this con should be also cut, यानी con कोई नहीं cut करना है, उसके साथ बाकी ये सब in addition to con you have to also cut all these things. तो जब in addition वाला sense होता है तो we use in besides, and when you are talking about position, like I live beside the stream, यानी मैं उसके बगल में रहता हूँ, बाजू में रहता हूँ, तब मुझे position की बात करनी है तो I will use beside. Okay, I hope this difference is clear with all. Yes, sir. Okay.
We move on to the next concept. Now try to fill this with any appropriate preposition. He was going dash the station to see off his friend. Going to the station. Okay. Any other probable answers? टू आ सकते हैं और कुछ आ सकता है? Any other probable answers? Okay. Towards आ सकता है या नहीं आ सकता है बोलो? हाँ सर आ सकते हाँ. Sorry. Towards भी आ सकता है. He was going towards the station to see off his parents. टू आ सकता है. तो दोनों में से which one is more appropriate? Which one is more closer to the answer, right answer? टू या towards? दोनों में से ज्यादा सही कौन सा लग रहा है? टू आएगा या towards आएगा? सर टूवर्ड्स Towards. Towards. Okay. देखो, I'll just tell you the rule. To is normally used to indicate the destination, and towards हम लोग यूज करते हैं डायरेक्शन बताने के लिए. डेस्टिनेशन का मतलब सब लोग को पता है. What do you mean when I mean when I say destination? Destination क्या होता है? Like the end point of the journey ना. Like आप ट्रेन में बैठते हो ना, तो डेस्टिनेशन इज CST, तो उसका end point of the journey is CST, correct? तो इसमें now in this sentence I am talking about a destination or a direction. क्या चाहिए मुझे? Direction. Direction. Okay, direction. Now read this carefully again. I was going to the station to see off his friend. He was going, sorry. See off his friend यानी क्या? उसके फ्रेंड को बाय बाय करने के लिए वो जा रहा था, या उसके फ्रेंड को ड्रॉप करने को जा रहा था. तो अगर उसको ड्रॉप करने को फ्रेंड को जाने का है, तो उसको स्टेशन में एंड में जाना है, स्टेशन में जाना है या स्टेशन के आजू बाजू में जाना है? किधर जाना है उसको? Station पे आना है. I'll give one more example. चलो. नाउ मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा है, आई एम गोइंग टुवर्ड्स द स्टेशन टू बाय सम न्यू क्लोथ्स. तो उसका मतलब क्या हो गया? अभी ये सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? स्टेशन के पास. हाँ, स्टेशन के पास, यानी वो उसका जो कपड़े का मार्केट जो भी है वो या शॉप है वो स्टेशन के आजू बाजू में है. तो व्हेन इसका मतलब जब मैं डायरेक्शन की बात करता हूँ ना, एक्चुअली इज नॉट गोइंग टू द स्टेशन. उसका डेस्टिनेशन यानी उसका एंड पॉइंट ऑफ द जर्नी इज नॉट द स्टेशन. इसका उसको खाली मार्केट में जाने का है जो मार्केट स्टेशन के आजू बाजू में है. तो अगर उसका मुझे डायरेक्शन की बात करें यानी उसके लेफ्ट या राइट स्टेशन के जो भी शॉप है, तो व्हेन आई वांट टू टॉक अबाउट डायरेक्शन आई विल यूज टुवर्ड्स. और डेस्टिनेशन यानी एक्चुअली इज गोइंग टू सी ऑफ, उसके फ्रेंड को ड्रॉप करने को जा रहा है. तो अगर उसको फ्रेंड को ड्रॉप करने का है, उसको फ्रेंड को उसको ट्रेन में बिठाना है, तो वो स्टेशन के आजू बाजू में जाएगा या स्टेशन में जाएगा? Station में जाए. स्टेशन में जाएगा. हाँ, तो जब डेस्टिनेशन उसका स्टेशन होगा ना, दैट्स व्हाई इधर क्या आंसर आएगा? करेक्ट, 2. टू आएगा. समझ में आया? तो टू इज ऑलरेडी नॉर्मली यूज्ड व्हेन यू टॉक अबाउट डेस्टिनेशन टुवर्ड्स जब डायरेक्शन. तो ये सेंटेंस में टुवर्ड्स सही है. ये सेंटेंस में आपका आंसर विल बी टू द स्टेशन. ओके, गॉट दिस डिफरेंस? So just make a note of both the examples.
डन हो गया? Yes, sir. ओके Yes, sir. Okay, I just put up a sentence. I'm giving the options also. Okay, this question had appeared in your IAS exams. ये 2017 का एग्जाम क्वेश्चन है शायद से, बट आई डोंट रिमेम्बर द ऑप्शंस करेक्टली, लेकिन उसमें मैंने करेक्ट वाला ऑप्शन डाल दिया है. तो जस्ट ट्राई टू क्रैक दिस 2017 IAS क्वेश्चन. क्या आ सकता है? She was waiting dash her husband on with for beside For Sir, with. I'll just put. और कुछ आ सकता है? With, sir. With. अच्छा with और With, sir. beside आ सकता है? No. beside नहीं आ सकता. ओके, तो for और with only two. करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अभी आपको उसमें से कोई भी आप गिवन अ चॉइस की एक कोई भी आंसर हटा दो जो आ नहीं सकता, तो कौन सा हटाओगे आप? एक कोई भी आंसर हटा दो चार ऑप्शन में से जो आ नहीं सकता है, कौन सा हटाओगे आप? ऑन हटाओगे, विथ हटाओगे, फॉर हटाओगे या बिसाइड हटाओगे? Sir, on. On. On, sir. ओके, चलो, ऑन इज अ यूनानिमस डिसीजन, बट एक्चुअली आई टोल्ड यू दिस वाज कभी पूछा गया था ये कौन से एग्जाम्स में? हाँ, आईएएस एग्जाम से पूछा गया था, तो उसका थोड़ा लेवल थोड़ा अलग होता है ना, हटके. उधर वो क्वेश्चन आते हैं जो नॉर्मली हम लोग सोचते नहीं ऐसा आ सकता है. ओके, तो एक्चुअली उसका करेक्ट आंसर फॉर भी नहीं है, विद भी नहीं है, उसका करेक्ट आंसर ऑन ही है. आई विल टेल यू द रीजन. ओके, तो दिस इज अ बिट ऑफ सरप्राइज, लेकिन नॉर्मली आईएएस लेवल है तो थोड़ा हटके क्वेश्चंस पूछेंगे. नाउ टू वेट ऑन, एक्चुअली इट्स अ इडियम, वो फ्रेज है इंग्लिश में. टू वेट ऑन का मतलब होता है टू सर्व, टू सर्व समवन. सर्व का मतलब क्या होता है? व्हाट डज दिस मीन, टू सर्व समवन? हाँ, टू सर्व समवन यानी किसी की सेवा करना. ठीक है, इट्स अ फ्रेज विच मीन्स सेवा करना. तो एक्चुअली वो लोग ने गूगली कैसे डाली समझ लो. शी वाज वेटिंग डैश और इल हस्बैंड, तो इधर वो लोग ने एक वर्ड डाल दिया इल. इल का मतलब क्या होता है? इल का मतलब क्या होता है? बीमार. बीमार. तो अगर बीमार है तो उसको सेवा करनी पड़ेगी ना, अपने हस्बैंड की करनी पड़ेगी क्या नहीं? यस ना? हाँ, sir. हाँ. Yes, sir. दैट्स व्हाई द करेक्ट आंसर इज वेटिंग ऑन, टू वेट ऑन. समझ में आया? तो ये ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, बट आई डोंट एक्सपेक्ट दैट आपको, लेकिन फिर भी ध्यान में रखो. ये समझ में आया वेट ऑन क्यों था? बिकॉज इट्स अ फ्रेज. ओके, वन मोर थिंग, अगर अगर ये वर्ड नहीं रहता Sir, तो, एक मिनट. अगर इल नहीं रहता था तो फिर कोई भी ऑप्शन चल जाता था, क्योंकि वो हस्बैंड इल नहीं है ना. शी वाज वेटिंग विद हर हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड, बिसाइड हर हस्बैंड, ये कुछ भी चल जाता था, कभी ऑन नहीं चल जाता था. कभी ऑन वुड हैव बीन द रॉन्ग आंसर. समझ में आ रहा है ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को? Yes. Yes, व्हाट आई एम sir. ट्राइंग टू Yes, कन्वे. sir. तो बिकॉज ऑफ दैट वन वर्ड जो आपका इल था, इसलिए आपको यू आर लेफ्ट विद नो अदर ऑप्शन, खाली आपको ऑन ही डालना पड़ेगा. लेकिन अगर ये वर्ड इल नहीं होता था तो कोई भी वर्ड चल जाता था. शी वाज वेटिंग फॉर विद हर हस्बैंड, फॉर हर हस्बैंड, बिसाइड हर हस्बैंड, लेकिन वो लोग ने क्या किया, इधर इल वर्ड डाल दिया. देन विद बिकॉज ऑफ दिस वर्ड वो आदमी बीमार है इसलिए उसकी सेवा करनी पड़ेगी. तो बिकॉज ऑफ दिस सिंगल वर्ड यू आर लेफ्ट विद ओनली वन ऑप्शन, दैट इज ऑन. ओके, आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ओके, फाइन. I'll move to the next one.
Again, fill them this with the right options. Done? Tell me the answers. First क्या लिखा आप लोगों ने? Since. 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 Okay. How about the second one? I have been doing For. nothing. For. Okay. And the last one? Since. 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 Okay. Now any specific difference? कभी since कभी यूज होता है, for कभी यूज होता है, नहीं कुछ पता चला आपको? And for? Okay. Any difference between the use of since or for? Since कभी होता है, for कभी होता है. ये दो, if you study the second and third sentence तो थोड़ा कुछ idea आ गया. Since कभी use होता है, for कभी use होता है. Now see this, read this last sentence. He has been staying in Mumbai since 2012. तो कभी से रह रहा है वो बंदा मुंबई में? 2012 से रह रहा है. यानी मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि नहीं? एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है इसमें? एक्शन कभी स्टार्ट हुआ और स्टार्टिंग पॉइंट पता चल रहा है या नहीं चल रहा है? हाँ. पता चल रहा है ना, 2012 से रह रहा है. तो जब मुझे कोई भी एक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट पता है तो आई विल बी यूजिंग सिंस. ओके, व्हेन आई नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्शन. समझ में आई ये पहला वाला बात? हाँ सर. Yes, sir. Okay. Now coming to the second one, I have been doing nothing for 2 hours. तो ये 2 घंटा ही, वो 2 घंटे से कुछ भी नहीं कर रहा है, बट यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट ना. वो 2 घंटा कोई भी 2 घंटा हो सकता है. यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट कभी स्टार्ट हुआ है, 8 बजे स्टार्ट हुआ है, 10 बजे स्टार्ट हुआ है. तो इफ यू डोंट नो द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द एक्शन यू विल बी यूजिंग फॉर. समझ में आया ये वापस कॉन्सेप्ट? Yes, sir. If you don't know the Yes. starting point of any action, you'll use for. If you know the starting point of any action, you'll use since. As simple as that. Okay. Yes, sir. Now coming to the first one. First में action का starting point पता है या नहीं पता है मुझे? Yes sir. Yes, sir. पता है. क्यों है? Because even though उधर time specify नहीं किया, लेकिन देखो इसमें क्या, what logic we use? Now the day is divided into how much parts? 4 parts. Morning, afternoon, evening, and night. So now the day is divided into 4 parts, and that's why this morning is considered as a point of time. So morning में उसने start किया. He has been working since morning. So this is my start of point where the action has started. So that's why इधर since आएगा. समझ में आया? Okay. Yes, sir. Okay. Sir, और इसके from कभी, related- any idea from कभी Hello? use होता है? When do you use from? Since हो गया, for हो गया, from कभी use होता है? Start. Okay. From के साथ जनरली, from नॉर्मली तो हम लोग यूज करते हैं to के साथ, from this to this ना, करेक्ट? एंड द अदर Yes. डिफरेंस इज since normally is used the perfect tense. जो since होता है ना, since normally is used with perfect tense, and from is used with all tenses. From all tenses के साथ use. Now what is the perfect tense? Perfect tense क्या होता है? How do you identify a perfect tense in a sentence? ये sentence perfect tense में, present perfect में, past perfect कैसे पता? Have, has. हाँ, yes, have, has, had, ये सब words रहेंगे, that means it is a perfect tense. ठीक है? तो जब भी have been, has been या had been, जब भी ये words रहेंगे तो ये perfect tense में. तो the basic difference is since हमेशा हम लोग perfect tense में use करते हैं, और from is used in all forms of the tense. Okay, from can be used in continuous tense also. It can be used in the perfect tense, both tenses. ये difference समझ में आया सब लोगों को? Yes sir. Okay, so just make a small note regarding this. Since I'm dictating this, since is used, since is used before a noun or a phrase. Since is used before a noun or a phrase, denoting some point of time, denoting some point of time.
for is used to denote a period of time. For is used to denote a period of time. Period of time ब्रैकेट में ड्यूरेशन लिखो. Period of time बाजू में ब्रैकेट में ड्यूरेशन लिखो. Okay. Again, this is a very important concept. Errors are asked normally in the banking exams regarding this. So just highlight this wala या कुछ asterisk वगैरह डाल दो. Many questions are asked based on this. Now he's sitting dash his parents, he's standing dash his friends. Among किधर आएगा, between किधर आएगा? बोलो among किधर आएगा, between कहाँ आएगा? Give a thought and tell me. Just a very easy concept. बोलो. He's sitting between the parents and Between he is first. stand. Okay. Second one is among. Okay. All of you agree? Yes. Okay. Yes. So what is the rule? Tell me. Then between क्यों डाला, among क्यों डाला? Which rule you are following? Of course, it's correct. Both answers are correct. So tell me the rule now. Very easy rule. Among is used for more than two person. Yes, very good. Between is used when you are talking about two persons. हम लोग जब दो persons की बात कर रहे हैं या two things. Among is used for more than two things. So now when I say between his parents यानी कौन होते हैं? कितने जने parents? Only two ना, mother or father. So that's why since you are talking only about two persons, it does between आएगा. And friends can be two or more than two. I don't know how many friends. That's why among आएगा. So whenever we are talking about two things, दो चीजों की बात हो रही है between, दो से ज्यादा होती है तो among. So this is a very Sir. important. Yeah, बोलो. सर फर्स्ट वाले में अगर his family होता तो among आता. First वाले में sorry. Sir, he is sitting dash his family. Family होता तो among आता क्या? हाँ, family के साथ among ही आएगा ना, because I don't know how many members are there in the family ना. They can be two or more Okay. than two also ना. Correct? Yes. Family Sir. नहीं होगा, family members आएगा. You can't say family. He's sitting among his family members आएगा. You just can't say a family. तो उसके बाद आपको और एक noun add करना पड़ेगा. तो और उधर definitely among होगा. Okay? हेलो सर. हाँ बोलो. सर अगर यहाँ पे ओनली मॉम होता तो? कहाँ पे खाली among होता है तो sorry? बिटवीन हिज पेरेंट्स की जगह ओनली मॉम या डैड होता तो? तो between कैसा आएगा? फिर between और among दोनों नहीं आएगा ना, तो beside आएगा ना, खाली mom और like. तो अगर आप एक ही चीज की बात कर रहे हो तो क्या आएगा? आप ही बोलिए क्या आ सकता है इसमें? अभी हम लोग ने डिस्कस किया. क्या आ सकता है? कौन सा प्रेपोजिशन यूज कर सकते हैं? जो कौन सा प्रेपोजिशन है जो पोजीशन बताता है? अभी थोड़े टाइम पहले हम लोग ने डिस्कस किया था. ऑल ऑफ यू आर फ्री टू आंसर. कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? Beside. Beside. बिसाइड. यस, पोजीशन वाला यूज करेंगे ना हम लोग. बिसाइड यूज करेंगे. समझ में आया ये? Yes, sir. ओके. आई रिमूव दिस. ये लिख के हो गया आपका? Yes, sir. Yes, sir.
I'll just extend this, ये थोड़ा और stretch करता हूँ यही concept. I'll give one more example. तो just tell me क्या आएगा वापस, between आएगा, among आएगा. Switzerland lies dash France, Germany, Italy and Austria. क्या आएगा बोलो आप? Among. Give me. Among. among, Among. Why among? Tell me the reason. More than two. Than countries. Yeah, more more than two. than two But countries. there's a small twist in the tail. I'll tell you what is the twist. इधर हम लोग ने जब बात की है, there is of course more than two. लेकिन इधर मैंने specify किया है ना, countries का नाम बोला है ना, कौन से countries है? Specify हाँ, किया है क्या नहीं किया है? हाँ सर किया है. तो when you are specific, हम लोग जब specify करते हैं तो अगर दो से ज्यादा होते हैं तो भी हम लोग को between ही यूज करना पड़ेगा. Why? Because इधर जैसे ये वाला सेंटेंस, इधर भी put among, क्योंकि ये फ्रेंड्स कौन से मुझे पता नहीं ना, फ्रेंड्स के नाम नहीं दिए. करेक्ट? ये सेंटेंस में फ्रेंड्स के नाम दिए थे कि नहीं दिए थे? नहीं दिए थे. नहीं दिए थे, तो इट वाज नॉट स्पेसिफिक, दैट्स व्हाई आई हैड टू यूज अमंग. बट इन दिस केस ये वाला जो थर्ड सेंटेंस है उसमें देयर आर मोर देन 4 कंट्रीज, 1 2 3 4, मोर देन या 4 कंट्रीज. बट द थिंग इज इधर स्पेसिफाई किया है कौन से कंट्रीज के नाम है, तो वो नाम दिए. इसलिए जब थिंग्स आर स्पेसिफाइड देन अगेन यू विल कम बैक टू बिटवीन. समझ में आया ये वापस रूल? अगर वो चीजों को स्पेसिफाई किया, वो चीजों के नाम दिए गए, लाइक वो कंट्रीज के नाम दिए गए, तो इधर बिटवीन ही आएगा. गॉट दिस? कंफ्यूज्ड? No sir. You need me to you want me to explain this again? देखो ये बहुत सिंपल है. इधर पेरेंट्स की बात की है तो इधर खाली दो चीजों की बात की है, तो दैट्स व्हाई पेरेंट्स मॉम और डैडी होते हैं, तो दैट्स व्हाई मैं बिटवीन ही यूज करूंगा. इधर फ्रेंड्स कैन बी मोर देन 2, दैट्स व्हाई इधर अमंग होगा, क्योंकि इधर फ्रेंड्स के नाम नहीं दिए. लाइक अगर इधर ये सेम सेंटेंस में लिखता हूं तो आई थिंक द डाउट विल बी क्लियर. अभी ये सेकंड और फोर्थ सेंटेंस में डिफरेंस क्या है बोलो मुझे. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेकंड एंड फोर्थ सेंटेंस? Name specify किया. या नेम स्पेसिफाइड किया. इधर कितने फ्रेंड्स है मुझे पता नहीं, इधर नेम मैंने स्पेसिफाई किए, तो अगर थिंग्स आर स्पेसिफाइड क्या यूज करूंगा मैं? Between. बिटवीन. समझ में आया ये दोनों सेंटेंस का डिफरेंस? इधर सिंपल Yes. दे आर मोर देन 2 बट द थिंग्स आर नॉट स्पेसिफाइड. इधर नाम नहीं बताए गए, दो से ज्यादा है इसलिए मैंने अमंग यूज किया. इधर भी दो से ज्यादा है लेकिन इधर नाम बताए गए, इंडिविजुअली सबको पता नाम बताए गए, दैट्स व्हाई बिटवीन. अभी लॉजिक समझ में आया? Yes. Yes So sir. if the names are mentioned, just put between. Okay? Still confused? Confusion है तो पूछ लो अभी भी. No sir, no. Okay. No, sir. Okay. I move to the next one then. Now tell me if that concept is clear, you should be able to answer this correctly. Among first. First one among.
अदर्स गिव अ ट्राई। फर्स्ट में क्या आएगा? Between. Between आएगा सर. टेल द रीजन ऑल्सो, रीजन भी बताओ। बिटवीन करेक्ट है, रीजन Specify बताओ। किया है ना सर. Specify किया है. Name specify किया है. इधर स्पेसिफाई किया है तीनों कंट्रीज को, तो ऑफ कोर्स डेफिनेटली बिटवीन आएगा। और सेकंड में amongst, अमोंग, Among. क्योंकि इधर कौन से कंट्री से वो बताए नहीं गए। गॉट दिस? Yes अभी डिफरेंस sir. समझ में आया? Yes, sir. हाँ sir. Yes, sir. ओके। ओके, आई विल स्ट्रेच दिस और थोड़ा इसके। नाउ वी हैव स्टडीड 2। आई वांट यू टू आंसर दिस क्वेश्चंस नाउ। first में between, second में में between. Second में फर्स्ट वन among. में बिटवीन, और सेकंड में among. Second में among sir. फर्स्ट में बिटवीन ऑल ऑफ यू। Yes Yes, sir. sir. सोचो सोचो सोचो, जरा सोचो। बिटवीन आएगा, अमोंग आएगा। डोंट बी इन अ हरी। among, बिटवीन क्यों नहीं आएगा? बोलो, बिटवीन क्यों नहीं आएगा? बिटवीन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर कौन से फ्रेंड्स है वो नहीं स्पेसिफिकली बताया. यस, वेरी गुड। इधर मैंने खाली 4 फ्रेंड्स की बात की। मैंने 4 फ्रेंड्स कौन से बताए नहीं ना, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स हो सकते हैं। तो मैंने कौन से 4 फ्रेंड्स स्पेसिफाई किया है क्या? ही कैन हैव 10 फ्रेंड्स, ही कैन हैव 20 फ्रेंड्स, लेकिन कौन से 4 फ्रेंड्स से मैंने स्पेसिफाई किया है? इधर नाम लिखा है किसी का? No. नहीं. तो नाम नहीं लिखा है तो क्या आना चाहिए फिर? स्पेसिफाई नहीं किया रहेगा तो Among. Among. समझ में आया? और सेकंड में, सेकंड में Among. अमोंग। ओके, नाउ देयर इज अ स्मॉल, हम लोग ने अभी क्या स्टडी किया? बिटवीन और अमोंग स्टडी किया। आई जस्ट इंट्रोड्यूस वन मोर न्यू टर्म, और एक टर्म होता है अमोंग्स। इसका भी मीनिंग सिमिलर होता है। अमोंग, बिटवीन, अमोंग्स, तीनों का मतलब एक ही होता है। तो अभी अमोंग का भी यूज करना है, अमोंग्स का भी यूज करना है। नॉर्मली अमोंग और अमोंग्स आई लेट इट ओवर हियर। बोथ आर यूज्ड व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2 थिंग्स। पहला कंडीशन तो ये है, दोनों मोर देन 2 थिंग्स के लिए यूज होते हैं। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन, अमोंग, सॉरी। और इसका सेकंड कंडीशन क्या है? Among is used after consonants, before consonants, sorry. What are consonants? What are consonants? अच्छा, consonants नहीं मालूम तो ये तो पता रहेगा। Yeah. What are vowels? Vowels सब लोग को पता है, फिर consonant से क्या दुश्मनी है इतना? A, E, I, O, U। तो consonants क्या होंगे फिर? बोलो ना। रिमेनिंग जो वॉवल को छोड़ के जो भी अल्फाबेट्स है ना, उसको हम लोग कंसोनेंट्स बोलते हैं। ठीक है, तो पहले रूल समझ लो। व्हाट आई सेड, दोनों, पहला दोनों का कंडीशन, रिक्वायर्ड कंडीशन क्या है? दोनों अगर 2 से ज्यादा चीजें तो ही हम लोग यूज करते हैं। द सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, अमोंग इज नॉर्मली यूज्ड बिफोर कंसोनेंट और अमोंग्स इज यूज्ड बिफोर वॉवल। तो इसमें कंसोनेंट कौन सा है, वॉवल कौन सा है, बताओ दोनों सेंटेंस में। नेक्स्ट लेटर देखो, इधर क्या है? इसका ब्लैंक के बाद का नेक्स्ट वर्ड क्या है? अब व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? Consonant. consonant, कंसोनेंट है, तो क्या आएगा फिर अकॉर्डिंग टू द रूल? Among. among, और इधर ब्लैंक के बाद कौन सा वर्ड है? vowel, वॉवल। तो क्या आएगा? Among. among us, अमोंग। तो ये समझ में आया सब लोग को डिफरेंस? अमोंग इज यूज्ड बिफोर अ कंसोनेंट, अमोंग्स इज यूज्ड बिफोर अ वॉवल। तो आई होप दिस डिफरेंस इज आल्सो क्लियर। ओके, Yes sir. Yes, sir. सर Okay, फर्स्ट fine. वाले में 4 फ्रेंड्स स्पेसिफाई किया ना, मतलब ऐसा 4 नहीं, दिया है 4 कि फ्रेंड्स, 4 4 फ्रेंड्स दिए, लेकिन कौन से 4 फ्रेंड्स नहीं दिए ना? जैसे आपके भी 10 फ्रेंड हो सकते हैं, यू कैन हैव मोर देन 4 फ्रेंड्स ना।
If the names, but the names are definitely not given. Names नहीं दिए ना वो 4 friends के. So it is specified to a certain extent. पूरा specify नहीं किया, खाली थोड़ा extent तक specify किया है 4 friends. लेकिन वो 4 friends कौन है वो नहीं बताया गया है ना. Okay? Yes, sir. Okay, I hope this is clear. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, I'll just test this a bit और थोड़ा आगे. He finished पहले just take down the sentences. I'll explain what to do. Okay, if you're finished writing, I'll just introduce one more term. इसके साथ और एक term आता है amid. Now ये चारों terms among, between, amongst, amid, चारों का meaning same ही होते हैं. All of them mean the same. I'm repeating again. All the 4 terms among, between, amongst, amid, चारों terms का मतलब same ही होता है. अभी if I say I have to use amid over here, मुझे इधर amid use करना पड़ेगा. Any reason why I should use amid? Anybody can point out the reason मैंने amid क्यों use किया? ये चारों का मैं repeating, ये चारों का मतलब एक ही होता है. Okay? तो इधर amid क्यों आएगा? अभी तक हम लोग ने जो एग्जांपल्स किए थे प्रीवियस वाले अमोंग और बिटवीन के, व्हाट आर द एग्जांपल्स? द एग्जांपल्स आर लाइक बॉयज ना, हम लोग ने बॉयज कंसीडर किए थे, कंट्रीज कंसीडर किए थे. ठीक है, तो बॉयज कंट्रीज, और अभी हम लोग क्या कंसीडर कर रहे हैं? तो अभी क्या डिफरेंट है बोलो? हाउ इज द सेंटेंस डिफरेंट नाउ? पहले हम लोग ने एग्जांपल में बॉयज कंसीडर, लाइक ही वाज स्टैंडिंग अमंग द बॉयज, ही वाज स्टैंडिंग अमंग बिटवीन हिज पेरेंट्स. और अभी मैंने यूज किया है सब्जेक्ट, मेरा चोरा चेंज हो. पहले वाले जो सब्जेक्ट थे मेरे बॉयज, पेरेंट्स, गर्ल्स, वो काउंटेबल है क्या अनकाउंटेबल है? They were countable ना. And now if I talk about a tremendous applause का मतलब मालूम है ना, तालियों के वो क्या गड़गड़ाहट में. तो can you, is this a countable now? ये countable है? No, sir. So you can't count. The same way dense smoke, ये dense smoke, can you count it? Can you count the smoke? We can't count the smoke ना. So these are uncountable nouns. So जब भी uncountable nouns होते तो we use amid. So a simple rule, amid is used with uncountable nouns. याद रखो. यानी जिनको हम लोग गिन नहीं सकते उधर हमारा amid आ जाएगा. All 4 meanings are similar, but they are used in different criteria. Done? Wait. Okay.
हो गया? Yes, sir. ओके फाइन. Today we are discussing about prepositions. So is it correct? अच्छा, don't tell me this is right because you are discussing prepositions. I'm just asking अगर ये grammatically correct है क्या? ये sentence grammatically correct है या कुछ गलत है इसमें? सर करेक्ट है ग्रामेटिकल. Correct है. Okay, boys. Boys, correct है या wrong है? Okay, here I'll introduce a new concept. इसको हम लोग बोलते हैं omission of prepositions. Now, what does the word omission mean? Omission का मतलब क्या होता है? Omission का मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में? ओमिशन का मतलब होता है टू अवॉइड समथिंग, कुछ अवॉइड करना. ओके, तो एग्जाम में जितने क्वेश्चंस प्रेपोजिशंस के यूज पे आते हैं उससे उतने ही क्वेश्चंस अवॉइड करने हैं. कहा एग्जाम में दे व्हाट दे विल डू इन द एरर सिस्टम स्पॉटिंग एरर में, वो आपको वर्ब्स के साथ प्रेपोजिशन देंगे, जहां उसका यूज नहीं चाहिए वहां भी वो लोग डाल के देंगे आपको प्रेपोजिशन. तो दैट इज कॉल्ड एज ओमिशन. ओके, यानी कहाँ अवॉइड करनी चाहिए. लाइक डिस्कसिंग का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डिस्कस? डिस्कस सिंपल वर्ड्स में अगर मुझे कुछ बोलना है तो विच इज द अदर सिंपल वर्ड फॉर डिस्कस? नाउ वी आर डिस्कसिंग समथिंग, तो वी आर डूइंग व्हाट? हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कसिंग की जगह सिंपल वर्ड क्या है दूसरा? Talking. हाँ, टॉकिंग. गुड. talking. या वी आर टॉकिंग. तो डिस्कसिंग का मतलब एक्चुअली क्या होता है समझ लो. डिस्कसिंग का मतलब होता है टू टॉक अबाउट. करेक्ट ना? वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रेपोजिशंस यानी वी आर Yes, टॉकिंग sir. अबाउट प्रेपोजिशंस. तो उसका मतलब क्या है? ये जो अबाउट है ना वो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है. ये ऑलरेडी इट्स अ हिडन वर्ड. इसका मीनिंग में ऑलरेडी हिडन है. तो दैट्स व्हाई आई विल नॉट अगेन यूज द सेम प्रेपोजिशन अगेन. ये समझ में आया कॉन्सेप्ट? Yes, sir. आई रिपीट अगेन. डिस्कसिंग का मतलब होता है टू टॉक अबाउट. तो दैट्स व्हाई टॉक अबाउट, दैट्स मीन दैट इसका मतलब क्या हो गया? ये जो वर्ड है उसके मीनिंग में ऑलरेडी ये वर्ड प्रेजेंट है. ओके, तो दैट्स व्हाई ये अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है तो वापस में वही वर्ड यूज नहीं करूंगा, वही प्रेपोजिशन में यूज नहीं करूंगा. तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज ओमिशन ऑफ प्रेपोजिशन. जैसे एग्जाम में ऐसे ही सेंटेंस देंगे आपको, जो वर्ड जैसे ये वर्ब के साथ मुझे प्रेपोजिशन नहीं चाहिए फिर भी वो लोग ने प्रेपोजिशन डाल के दिया. तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. जहां प्रेपोजिशन नहीं चाहिए, ओके, आई विल गिव वन मोर. द टीचर एंटर्ड इन द क्लास. इन नहीं आएगा. इन नहीं आएगा. वेरी गुड. तो दैट मीन्स यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट. क्यों नहीं आएगा बोलो मुझे? एंटर्ड के लिए Entered. Enter मतलब entered. वेरी गुड. एंटर्ड Include मीन्स ऐसा. केम इन ना. एंटर्ड का मतलब केम ही नहीं होता है. तो इसमें ऑलरेडी इनबिल्ट प्रेपोजिशन है इसलिए इधर इन नहीं आएगा. तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जहां आपको प्रेपोजिशन नहीं यूज करना है फिर भी दे विल यूज द प्रेपोजिशन एंड दैट्स व्हाई यू हैव टू यू मस्ट बी एबल टू आइडेंटिफाई दिस वर्ड्स. ये पक्का समझ में आया? Yes, sir. Yes, Sir. So just take down these sentences, then I'll give you a few words, few verbs जहाँ preposition नहीं होना चाहिए फिर भी आते हैं. So first take down this sentence and once you have finished, let me know.
हो गया लिख के ये। Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ जस्ट टेक अ फ्यू वर्ड्स जिसके साथ हम लोग प्रेपोजिशन यूज नहीं करते हैं लेकिन एग्जाम में वो लोग यूज करते हैं। ओके, तो जस्ट आई राइट अ फ्यू वर्ड्स, आई डिक्टेट अ फ्यू वर्ड्स। पहला लिखो एम्फसिस, एम्फसिस, EMPHASIS. There are many words, there are many verbs, but I'll just give those which are important from the point of view of your exam. जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं वही दूंगा, पूरे नहीं दूंगा। सेकंड, इन्वेस्टिगेट, इन्वेस्टिगेट। कंप्राइज, कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब क्या होता है? व्हाट डज द वर्ड कंप्राइज मीन? कंप्राइज का मतलब what does the word comprise mean? कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, इट इज मेड अप ऑफ, दिस इज कंप्राइज्ड ऑफ ना। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। तो नॉर्मली एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग, आपको कंप्राइज के साथ ऑफ डाल के देंगे, तो कंप्राइज के साथ ऑफ नहीं यूज करना है। ओके, इट विल बी ओनली कंप्राइज। देन डिस्कस, जो अभी हम लोग ने यूज किया, डिस्कस, एंटर, डिस्पाइट, DESPIT, डिस्पाइट, एंश्योर, सर क्या डिस्पाइट? डिस्पाइट, डिस्पाइट मैं लिखता हूं। डिस्पाइट का मतलब क्या होता है? हम लोग बोलते हैं ना, के बावजूद। हाँ, के बावजूद। तो डिस्पाइट का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? इंस्पाइट ऑफ। ठीक है, तो उसका मतलब क्या है, जो डिस्पाइट है ना उसमें, इसका मतलब ये, तो इसमें ऑलरेडी ये ऑफ प्रेपोजिशन है, तो एग्जाम में क्या करेंगे वो लोग, डिस्पाइट के साथ क्या ऑफ डाल के देंगे, तो दिस विल बी एरर। तो स्पॉटिंग एरर में ये बहुत काम आता है, क्योंकि डिस्पाइट का मीनिंग होता है इंस्पाइट ऑफ, और ऑलरेडी इसमें इनबिल्ट प्रेपोजिशन है, तो दिस इज द एरर, ये आपका एरर हो जाएगा। ओके, तो आई होप दिस कॉन्सेप्ट्स आर क्लियर नाउ। यस सर। यस Yes, sir. तो उसमें से ना कुछ वर्ड्स अंडरलाइन करो, बिकॉज दिस वर्ड्स हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड प्रीवियसली, दे हैव ऑलरेडी बीन आस्क्ड। कंप्राइज, कंप्राइज अंडरलाइन करो, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस ऑलरेडी पूछे गए हैं एग्जाम में। बाद में कंप्राइज के बाद द अदर वर्ड इज डिस्कस, डिस्पाइट, डिस्पाइट तो अभी पूछा गया था ये एग्जाम में, दिस एग्जाम ओनली टेस्ट बीन आस्क्ड। तो जस्ट सी दैट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग द टॉपिक फॉर प्रिपरेशन, जस्ट ये जो छोटा सा जो लिस्ट है 7-8 वर्ड का, जस्ट मेमोराइज दिस, क्योंकि नॉर्मली इसके साथ क्या करते हैं वो लोग, प्रिपरेशन डाल के देते हैं आपको एग्जाम में और कंफ्यूज करते हैं। तो जस्ट बी अ बिट केयरफुल व्हेन यू सी दिस वर्ड्स, सी दैट प्रिपरेशन उसके साथ नहीं आएंगे। ओके, समझ में आया ये कॉन्सेप्ट ओमिशन वाला? यस सर। Yes, sir. ओके, फाइन। मैंने 2 सेंटेंसेस लिखे हैं, इसमें प्रेपोजिशन कौन से बताओ मुझे आप, विच आर द प्रेपोजिशंस? Which is the preposition in both the cases? कौन सा वर्ड पोजीशन इंडिकेट करता है? सर इन। In. इन, ओके गुड। In. और सेकंड में भी इन ही है ना? Yes. हाँ Correct? सर हाँ. इन है। ओके, तो बट इफ आई टेल यू, ये जो इन है ना, जो इन है वो एक सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और दूसरे सेंटेंस में प्रेपोजिशन का काम नहीं कर रहा है। तो मुझे बोलो कौन से सेंटेंस में इन प्रेपोजिशन का काम कर रहा है और कौन में नहीं कर रहा है? एक सेंटेंस में इट इज एक्टिंग एज अ प्रेपोजिशन और एक में इट इज नॉट एक्टिंग।
First one में First में फर्स्ट वन कर में रहा है, कर रहा है, कर रहा है सेकंड में, सेकंड में नहीं कर रहा है। सेकंड में ऑलरेडी है सेकंड में सर। ऑलरेडी है केम और इन फिर से। आई डिडंट गेट दिस, सेकंड में ऑलरेडी है यानी एंटर रहेगा ना, एंटर एंटर रहेगा तो वी कैन से इट्स ऑलरेडी देयर है। अगर एंटर है तो केम इन है, ठीक है, क्योंकि केम के साथ इन ही आता है। अगर एंटर रहेगा तो यू कैन से, बट नाउ एंटर नहीं है ना। वी हैव डन एडवर्ब्स किया आप लोगों ने, मुझे मेरे साथ एडवर्ब्स किया है। yes. Yes. तो ये जो इन है वो एडवर्ब हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बोलो, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो सकता है, हाँ सर हो सकता है। हो सकता है ना, बिफोर बिकॉज इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर ना, वेयर डिड ही Where वेयर टू कम, तो प्लीज कम इन। नाउ द सेकंड में डिफरेंस क्या है? अभी फर्स्ट सेंटेंस और सेकंड सेंटेंस में डिफरेंस समझ लो। इसके इसमें जो प्रीपोजिशन है उसके बाद क्या है? एक ऑब्जेक्ट है। यू कैन सी दिस ऑब्जेक्ट, दिस इज ऑब्जेक्ट, करेक्ट? प्लीज कम इन द रूम, द रूम इज ऑब्जेक्ट ना। फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट है क्या आपका? no sir, No, sir. Okay, so this is very important. A preposition, this gives you a very important rule. A preposition is always followed by an object. Preposition is always followed by an object. अगर उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे फर्स्ट केस में उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इट विल नॉट बी अ preposition, इट विल बी अ सम अदर पार्ट ऑफ स्पीच। जैसे ये केस में एडवर्ब है। समझ में आया ये इंपॉर्टेंट रूल? ऑल ऑफ यू फॉलोड दिस रूल? yes sir. ओके, सर फर्स्ट वाला एडवर्ब है ना? एडवर्ब प्लेस हो जाएगा क्योंकि देयर इज नो ऑब्जेक्ट ना बिसाइड दिस। ओके, समझ में आया? यस सर। ओके, लेट अस डू सम एग्जांपल्स नाउ। कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे इन द एग्जाम्स। Okay, we are doing error spotting regarding the same topic. The policeman became angry with the rider's behavior towards him. देखो, anything wrong with this sentence? You are able to spot anything wrong? Any particular part जो wrong हो सकता है? अच्छा, there are two prepositions in this sentence. कौन से दो prepositions है? कुछ पहले मुझे बताओ। दो prepositions यूज किए हैं इस sentence में। Which are the two prepositions? with Sorry? Word. With With, yes, with words. or towards. Okay. towards Okay, so just remember this. It's a very simple logic. Angry, एक angry with होता है और एक angry at होता है, ठीक है? हम लोग normally angry with होते हैं, angry at बोलते हैं। तो angry with refers to a person, किसी person के ऊपर गुस्सा होता है तो हम लोग बोलते हैं I am angry with him, I am angry with my dad, I am angry with my mom। और angry at होता है कोई situation या कोई behavior की बात कर दे तो।
तो आप बोलते हैं ना आई एम एंग्री एट हिज रूड बिहेवियर, तो सिंस यू आर टॉकिंग अबाउट बिहेवियर आई एम तो एंग्री एट, लाइक आई विल जस्ट सेट दिस एग्जांपल. और इसके लिए आई एम एंग्री विथ माई मॉम, यानी मैं मेरी मम्मी के ऊपर गुस्सा हूँ. तो अगर आप किसी पर्सन के बात कर रहे हो तो हम लोग विथ यूज करते हैं, और अगर किसी सिचुएशन के लिए आप गुस्सा हो तो वी यूज एंग्री एट. तो नाउ टेल मी क्या आना चाहिए उधर, इधर सिचुएशन की बात हो रही है या पर्सन की बात हो रही है? इधर क्या बात हो रही है, पर्सन की या सिचुएशन? पर्सन Behavior. बिहेवियर, राइडर्स, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइडर, वी आर टॉकिंग अबाउट द राइडर्स बिहेवियर ना. तो सिंस बिहेवियर की बात हो रही है तो इधर क्या आएगा, एंग्री एट, नॉट एंग्री विथ. तो द एरर विल बी इन योर पार्ट बी एंड दैट इज एंग्री एट. ओके. Yes, sir. अच्छा लिख के हो गया तो बोलो, आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन. Done. I'll move to the next one. सर लिखना है. Okay. लिखो, look, I'll wait. डन सर. I'll move to the next one. So tell me anything wrong with this? The meeting scheduled to be held between 2 p.m. to 3 p.m. was postponed due to unavoidable reasons. Anything wrong with this? From आएगा. Yes, yes, very good. From आएगा इधर. Combination from और to का होता है, और अगर आपको between यूज करना है तो between के साथ you have to use and. Between और and का होता है. Okay? तो from और to का combination होता है between और and. तो you have to either change between या you have to either change to, दोनों में से एक. So your error will be in part B. Okay? So just make a note of these two combinations.
हो गया ये लिख के? एक मिनट सर. ओके 8 minutes, sir. ओके ओके, I'll wait. हो गया लिख के? फिनिश? सर एक बार ये Yes, sir. समझाइए ना फिर से. ये कॉम्बिनेशन खाली याद रखो, बिटवीन जब भी आता है ना, तो बिटवीन के साथ हम लोग टू, ओके मैं लिख लेता हूँ, बिटवीन के साथ दूसरा कोई भी, लाइक बिटवीन के साथ हम लोग टू, या बिटवीन के साथ हम लोग दूसरा कोई भी प्रीपोजिशन यूज नहीं कर सकते, ये रॉन्ग है। बिटवीन जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा एंड ही आना चाहिए। बिटवीन के साथ जैसे नाइदर नॉर आइदर और होता है ना, वैसे बिटवीन के साथ एंड ही आता है। और फ्रॉम जब भी आएगा, फ्रॉम के साथ हम लोग एंड नहीं यूज कर सकते, लाइक फ्रॉम 2 and 3 नहीं होता है, फ्रॉम 2 to 3 होता है। तो ये सिंपल कॉम्बिनेशन जो आपको लर्न करना पड़ेगा, फ्रॉम ऑलवेज गोज विद टू, फ्रॉम के साथ हमेशा टू का यूज होता है, और बिटवीन के साथ हमेशा एंड यूज होता है। तो दैट्स व्हाई ये वाला जो कॉन्सेप्ट, ये वाला बिटवीन के साथ टू नहीं आएगा, तो इधर मुझे बिटवीन निकाल के फ्रॉम लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम गोज विद टू। ओके सर. ओके, अभी क्लियर है? हाँ सर, हाँ. थैंक यू. ओके, अभी नेक्स्ट वन लिखूं मैं? हो गया ये? हाँ सर. ओके फाइन। Parents should always listen the complaints of the children and respect them. Bolo, anything wrong with this? Bolo, if you're able to spot anything. बहुत बेसिक से एरर है, आई मीन हम लोग जब रोज बोलते तो भी देखो, टेल मी दिस, यू शुड listen your parents or you must listen to your parents, which one is correct? You must listen your parents or you must listen to your parents? Must listen. Listen के साथ to यूज करते हैं क्या नहीं यूज करते हैं? करते हैं. Listen के साथ normally listen always carries the preposition to. इधर listen के साथ तो मैंने कुछ preposition ही नहीं यूज किया, तो my error is in this part. तो it should be, इसके जगह listen की जगह क्या आना चाहिए? Listen to. तो listen जब भी रहेगा तो उसका ये preposition आना जरूरी है, fixed preposition है, listen के साथ हमेशा to आएगा. Okay? This is clear ना? Yes sir. Yes, sir. Okay.
I'll move to the next one. ये हो गया, लिख के निकाल दूं ये? Students, you have finished writing. I'll remove this. Yes, sir. Yes, sir. Okay, ठीक है. Okay, some animals live in water as well as land. Bolo, anything wrong with this? As well as on land. Yes, very good. Now देखो here I'm talking about two things. Some animals they live in water. तो इधर मैंने तो water और land दोनों की बात हो रही है. कुछ animals land पे भी रहते हैं और कुछ पानी में भी रहते हैं. Sorry, पानी और land दोनों पे रहते हैं. तो इधर water के साथ तो मैंने preposition use कर दिया. There is a preposition over here. लेकिन अगर इधर मुझे सेंटेंस बैलेंस करना है तो जो दूसरा वाला थिंग है उधर भी मुझे preposition यूज करना पड़ेगा. तो इधर भी मुझे on यूज करना पड़ेगा, which is a preposition. तो अभी क्या हो रहा है, सेंटेंस बैलेंस हो रहा है क्योंकि मैंने वाटर के साथ भी preposition यूज किया और जो दूसरा थिंग है लैंड उसके साथ भी preposition यूज किया. तो द एरर विल बी इन पार्ट बी बिकॉज अगर मुझे सेंटेंस बैलेंस करना है तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट थिंग्स, दो अलग अलग चीजों की बात कर रहा हूँ, तो अगर पहले के साथ मैं preposition यूज कर रहा हूँ तो दूसरे के साथ भी मुझे preposition यूज करना जरूरी होता है. ओके Yes, sir. ओके. जस्ट हैव टू क्लैरिफाई वन थिंग. ये हो गया ना, निकाल दूं ना? हाँ सर. Yes, sir. वो जो ओमिशन ऑफ preposition था, आई जस्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट उसमें. इसमें फर्स्ट सेंटेंस में preposition आएगा कि नहीं आएगा? We were discussing about prepositions. हम लोग ने सेंटेंस ऑलरेडी किया है in this lecture only. डिस्कसिंग का मतलब क्या नहीं आएगा, क्योंकि डिस्कसिंग का मतलब टॉक अबाउट होता है ना, टू टॉक अबाउट. तो हम लोग ने डिस्कस किया तो इसके साथ नहीं आएगा. ठीक है, इसमें आएगा. we are having a discussion. preposition बोलते हैं क्या, about preposition बोलते हैं? इसमें आएगा preposition सेकंड सेंटेंस में? हाँ सर. डिस्कशन. यस, डेफिनेटली इधर आएगा. क्यों आएगा बोलो, लेकिन डिफरेंस क्या है फर्स्ट और सेकंड सेंटेंस में? सिंपल बेसिक डिफरेंस है. टेल मी इफ यू आर एबल टू स्पॉट इट. ये क्या है? डिस्कसिंग इज द वर्ब. ये वर्ब है, करेक्ट? ऑलरेडी. एंड डिस्कशन क्या है? डिस्कशन इज अ नाउन. वी वर हैविंग अ डिस्कशन, तो दैट इज द नेम ऑफ दैट टॉक ना. तो ये वर्ब फॉर्म है और ये नाउन फॉर्म है. तो अगर वर्ब फॉर्म है तो नहीं यूज करूंगा, लेकिन अगर उसका फॉर्म चेंज हो जाता है तो मुझे यूज करना पड़ेगा. तो अगर जब आप ओमिशन ऑफ preposition करते हैं तो पहले वो उसका चेक भी करो कौन से फॉर्म में वो यूज किया, वो वर्ब फॉर्म में है या नहीं है. ये डिफरेंस समझ में आया सब लोगों को? All of you got this? Yes, sir. Okay, तो ये वर्ब फॉर्म है. आई एम रिपीटिंग अगेन.
अगर वर्ब फॉर्म है तो मैंने यूज नहीं किया, अगर वही वर्ड का ये नाउन फॉर्म है, डिस्कसिंग इज द वर्ब फॉर्म, डिस्कशन इज द नाउन फॉर्म, तो डिस्कशन नाउन फॉर्म है तो मैं प्रीपोजिशन यूज करूंगा, तो दिस इज द राइट फॉर्म, दिस इज द रॉन्ग फॉर्म, तो इसके साथ डिस्कशन के साथ ये डेफिनेटली यूज होगा। ओके Yes, sir. Okay, fine. I think I will wind up the lecture. Yeah. I don't know if you're meeting next Saturday. I'm not so sure, but hopefully we'll meet. Okay. I'll end the lecture now. Fine. Thank you. Thank you, sir. Yeah. Bye.